تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جس کی موت کے بعد نشست خالی ہو اور اسپیکر کے ڈی نوٹیفائی کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن وہاں الیکشن کا اعلان کرے. تمام تر ریزرویشن اور اوور آل الیکشن کے ساتھ جڑی جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیفیکلٹیز، مسائل، مشکلات اور تحفظات تھے، ان سب کے باوجود ہم نے عمران خان، پی ٹی آئی اور اوور آل پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جو نظریہ اور سوچ ہے کہ وہ پاکستان کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر رول آف لا کو انشور ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر قانون سب کے لیے کی جو آواز ہے اس کو حقیقت میں بدلتا دیکھنا چاہتے ہیں. یہی وہ سوچ تھی جس کی تعبیر دینے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو 10 کا الیکشن کے اندر حکومت پنجاب، الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی قیادت اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے جو کھینچا دانی اور تلخ کلامی چلتی رہی، وزیر اعظم کی واضح ہدایت تھی کہ میں الیکشن ہاروں یا میں الیکشن جیتوں، مجھے ہر حال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری ہوئی. ان کی اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب نے اس حلقے کے اندر وہ پیرامیٹر سیٹ کیے کہ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں ان پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے. تو میڈیا کی آنکھ جو ہے وہ گواہ ہے کہ ہمارے مخالفین اس حلقے میں آئے. یہاں چونکہ 5 گروپ کے ایم این اے ضلع سیالکوٹ کے اندر اور پورا سینٹرل پنجاب جس میں ہم گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی پال، بہاولپور، ناروال، شکرگڑھ، اس کے ساتھ جڑے گجرات، یہ ساری پٹی جو ہے سینٹرل پنجاب پہ جو مشتمل ہے، یہاں نون لیگ نے اکثریت کی سیٹیں لی. ان کے سٹنگ ایم پی ایم این ایز دن رات اس حلقے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اس الیکشن کمیشن کے ضابطوں کو ہوا میں اڑاتے رہے اور سونے میں سابقہ جو ہے وہ مریم نواز شریف کے ساتھ نون لیگ کی تمام قیادت نے اس کمپین کو جو ایک رات پہلے ختم ہو چکی تھی آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کی، اس کو یہاں جلسہ کر کے یہ پیغام دیا کہ سٹنگ کینڈیڈیٹ اے جے کے LA 36 کا اسٹیج پہ کھڑا، جس کے بازو پکڑ پکڑ کے لہرا لہرا کے اس کی کمپین کی جاتی رہی. اسی طرح تمام ایم پی اے اور ایم این اے حضرات اس جلسے کے اندر اسٹیج کی زینت بنے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ جو وفاق میں بھی ہم حکومت میں، صوبے میں بھی ہم حکومت میں، لیکن ہماری کسی صوبائی وزیر کو، کسی فیڈرل منسٹر کو اور کسی جگہ حکومتی عہدیدار کو آپ نے اس حلقے کے اندر سر عام اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے اور قانون کا مذاق اڑاتے سنا نہیں ہوگا. یہ ہے وہ تبدیلی کی لہر، یہ ہے وہ نظام کو بدلنے کا عزم، اور یہ ہے الٹیمیٹلی نیا پاکستان
का सियालकोट के अंदर PP38 के अंदर एक नया जन्म। अब चूंकि आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे, मेरे साथ दो इंतहाई अहम मेरे साथी और रूबे रवान इस हल्के के, एक जो है वो सलीम बरियार साहब, जिन्होंने इस हल्के के अंदर, इस कैंपेन के अंदर मरकजी किरदार अदा किया, और दूसरे हमारे कैंडिडेट मेरे छोटे भाई असद सलीम बरियार साहब, जिन्होंने एज ए कैंडिडेट इस हल्के के नौजवानों की आवाज़ को तक़वियत दी। और जिस तरह से ये कैंपेन की गई, आपको पता है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो चेंज हुआ, दोबारा टिकट इशू हुई, और एक पार्टी की सतह पे या ओवरऑल हमारे मुखालफिन में भी एक हलचल, इंतशार और इज़्तिराब चलता रहा। लेकिन मैं ख्वाजा तस्लीम पेश करना चाहूँगी अपने PP38 के तमाम कारकुनान को, उन तमाम पार्टी की क़यादत को और मीडिया को और अपने वोटर्स को, क्योंकि मेरे हल्के के अंदर PP38 का इलेक्शन जो है 72 की एक PP के अंदर हो रहा था, जिस जज्बे से, जिस जुनून से, जिस जुर्रतमंदी और बहादुरी से इस हल्के से गुज़श्ता कई दहाइयों से मुंतखब होने वाले ख़ानदान का बहादुरी से हमारे कारकुनान ने मुकाबला किया। हमारे कारकुनान ने उनके इश्तियाल दिलाने के बावजूद भी हौसला नहीं हारा, कानून अपने हाथ में नहीं लिया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो इलेक्शन है पूरी कौम ने देखा, मीडिया ने देखा कि सुबह से लेके 5 बजे तक कोई वफाकी सूबाई वज़ीर इस हल्के के अंदर अपनी सियासी जिम्मेदारियां अदा करने नहीं आया। कोई हमारा सरकारी एहलकार, अहदेदार हुकूमत पंजाब का यहाँ PP38 के इलेक्शन के हवाले से कोई सरकारी सरगर्मी में हमें मुलव्वस नज़र नहीं आया। आज के इस इलेक्शन का सेरा इसको पुरअमन बनाने का, इसको अवाम की ममनू के साथ जोड़ते हुए साफ, शफाफ और मुनसिफाना बनाने का सेरा हुकूमत पंजाब के साथ जाता है, PTI की क़यादत के साथ जाता है, वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच के साथ जाता है, और हमारी सरकारी इंतज़ामिया के साथ जाता है कि जिन्होंने तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग ग्राउंड दी, और आज पुरअमन तरीके से इस सिलेक्शन का इनेकाद जो है उसने हमारी मुखालफिन के तमाम जो दावे थे उनको गलत साबित किया। जो इन्होंने मुसलसल हटदर्मी से, गलत बयानी से, झूठा प्रोपेगेंडा करके हुकूमत पंजाब को इस इलेक्शन में मुलव्वस करने की मुख्तलिफ दास्तानें बयान की, आज के इस शफाफ इलेक्शन ने वो तमाम झूठ जो है उनको बेनकाब कर दिया। आज वो वाक़यात और इस इलेक्शन को इस नहज पे लेके आए कि जो इस हल्के को अपना किला समझते थे, आज PTI ने उस किले में जो शिगाफ डाला है और जिस अंदाज से कैंपेन चलाई गई और मेरे कारकुनान को वोटों से खरीदने की नून लीग ने जितनी कोशिश की वो दम तोड़ गई, और बार बार वोटों के ब्रीफ केस लेके मेरे साथियों के दरवाजों पे दस्तक दी जाती रही, उनके ज़मीन खरीदने के लिए बोलियां लगाई गई। मैं अपने उन जानसार साथियों को, अपने भाई आसन और सलीम साहब की तरफ से, पूरी PTI की तरफ से उनको सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने नोट की बजाय इस हल्के में वोट को इज्जत देने का तहैया किया, और आज के इलेक्शन में ये साबित किया कि एक तरफ नोटों वाले थे, ब्रीफकेस लेके कई रातों से लोगों को हरलाने में मसरूफ़ अमल थे, लेकिन उन्होंने नोटों की दस्तक पे कान नहीं धरे, अपने दरवाजे पे
दस्तक देने वाली तरक्की और खुशहाली की लहर मुशर्रफ लीग का है और वज़ीर आज़म इमरान खान का नज़रिया जिसका है, जो इंशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की तरफ कदम ब कदम पेशकदमी हो रही है और हल्के का जो मिजाज है, जो ओवरऑल हमें वो डाटा आ रहा है, हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पाकिस्तान के लिए उनकी काविशें कोशिशें और ओवरऑल इस हल्के के लिए जो हमारी मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी और हम अब इस इलेक्शन को जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस हरावर दस्ते के अंदर एक ऐसे सफाई का इजाफा करेंगे कि जो नौजवान भी है और जो इमरान खान का सारा फख्र से बुलंद करके सियालकोट का नाम रोशन करेगा। जो इस टीम साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो आपसे बात करें और आसन बात करेंगे तो फिर हम सवालात के जवाब देंगे। आगे कर दिन आपने गुजारे और आपने देखा कि ये इलेक्शन, मैंने पहले दिन कहा था कि ये इलेक्शन हमने इंशाअल्लाह ताला वोट से ही, और आज अभी इलेक्शन के रिजल्ट मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अभी तक जो आए हैं उसमें हम इलेक्शन जीत रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। इस इलेक्शन के अंदर थोड़ा सा मैं बता दूँ कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पहले मेरे भाई को टिकट दिया, फिर वो टिकट कोई मसला हुआ तो दूसरी दफ़ा फिर मेरे बेटे को टिकट दी, तो मेरे पास एक टाइम में 2 टिकट हुए, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी 2 उस तरह बढ़ गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला रोज़गार साहब से इंशाअल्लाह ताला उनसे रूबरू हुआ और जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, मेरी टीम पूरी के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, डॉक्टर फिरदौस साहबा के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई। आज हमने साथियों के साथ मिल उस जिम्मेदारी को पूरा किया।